اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت پر جاری رپورٹ میں بتایا ہے کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے پہلی شش ماہی میں پالیسی ریٹ میں مزید 2.25% اضافہ کیا، جبکہ حکومت نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے گرانٹس اور ترقیاتی اخراجات کم کیے۔ بیرونی کھاتوں پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے درآمدات کو محدود کیا۔ پہلی شش ماہی میں زر مبادلہ کے ذخائر میں شدید کمی واقع ہوئی۔ معاشی سست روی کے باعث نجی شعبے کے قرضوں اور ٹیکس وصولیاں ہدف سے کم رہیں۔ اسٹیٹ بینک نے مالی سال 2023 میں جی ڈی پی نمایاں طور پر کم رہنے کی توقع ظاہر کر دی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ معاشی سست روی کے باعث مالی سال 2023 میں جی ڈی پی 2% کے ہدف سے بھی کم رہنے کی توقع ہے، جبکہ مہنگائی جو پہلی شش ماہی میں 25% پر پہنچ گئی ہے، رواں مالی سال 27 سے 29% تک رہنے کا امکان ہے۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے عمران خان کو کیسے رام کیا؟ تجاوزات ختم کرنے کے لیے چیئرمین تحریک انصاف کیسے مانے؟ زمان پارک میں عمران خان اور حکومتی ٹیم کی 1 گھنٹہ بند کمرے میں جاری رہنے والی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز نے سامنے لے آیا۔ ملاقات میں کن نکات پر بات چیت کی گئی ہے، جانتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی بالکل، چونکہ حکومت کی طرف سے بھی اس دفعہ جو ہے وہ نرمی دکھائی گئی ہے، اسٹریٹجی بنیادی طور پر جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ 17 تاریخ کو جو مال روڈ سے دھرمپورہ جانے والی سڑک ہے اس کو بلاک کیا گیا اور اس کے جو ارد گرد کے رکاوٹیں تھیں ان کو ختم کرنا تھا، اور اس والے سے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی کہ ان کو کس طرح سے اٹھایا جائے، کس طرح سے صورتحال کو جو ہے وہ معمول پر لایا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ 3 دن کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہوئے یہ طے پایا گیا نگران حکومت کی طرف سے کہ ڈائریکٹ جو ہے چیئرمین تحریک انصاف سے بات کی جائے، جس کے لیے چناؤ کیا گیا کمشنر لاہور ڈویژن کا اور ان کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم کا، جس میں کمشنر لاہور کل شام جو ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملنے آئے، اور ان کو ملنے کے لیے جو اندر بند کمرہ جو بات چیت ہوئی اس کے لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی، جس میں صرف اور صرف ایک ہی نقطے پر بات سامنے آئی، جس میں جو ہے ایک سڑک کی زمان پارک کے جو باہر کنٹینر تھے، شامیانے لگے ہوئے تھے، ان کو ہٹانا تھا، جو یہاں پہ بینر سٹیمرز لگے ہوئے تھے ان کا بھی صفایا کرنا تھا، عارضی واش روم جو بنائے گئے تھے ان کا بھی صفایا کرنا تھا، اور اس والے سے جو ہے تمام تر جو باتیں ہیں وہ بند کمرہ میں کی گئی۔ اور اس والے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کمشنر لاہور جب 5 رکنی ٹیم کے ہمراہ اندر پہنچے تو ان کو پہلے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور ان کو چائے اور بسکٹ پیش کیے گئے، اور کم از کم 15 سے 20 منٹ جو ہے اچھا عمران یہ بھی بتائے گا کہ اس سے پہلے نگران حکومت اور وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کئی بار کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے جائیں اور تجاوزات کو ہٹا دیا جائے، لیکن اب جو ہے کمشنر لاہور کی جانب سے ایسی کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ خان صاحب بآسانی راضی ہو گئے ہیں؟ دیکھیں پہلے اس طرح نہیں ہوا، پہلے 4 ماہ میں جب ایک دفعہ آپریشن یہاں پہ ہوا تو وہ آپریشن جو ہے پوچھ کر نہیں کیا گیا، بتا کر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ محاذ رائی کا سبب بنا، اور جس کی وجہ سے بعد میں دوبارہ سے بڑے بڑے کنٹینرز لگائے گئے، شامیانے لگائے گئے، یہاں پہ تمام تر جو ہے روڈ کو جو ہے آدھی روڈ کو جو ہے وہ بلاک کیا گیا۔ مگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے کل کی صورتحال بالکل تبدیل نظر آئی، اور جب کمشنر اور اپنی 5 رکنی جو حکومتی ٹیم تھی ان کی سربراہی کرتے ہوئے اندر گئے تو انہوں نے باقاعدہ ان کو آگاہ کیا کہ یہ معاملہ ہے، اس معاملے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، جس کے لیے یہاں تو آپ اپنے ٹیم کے ذریعے یہاں ان رکاوٹوں کو خود ختم کروا لیں، یا ہماری مدد جو ہے جتنی بھی الائڈ محکموں کی مدد چاہیے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، جس پر باقاعدہ طور پر آپس میں معاملہ جو ہے وہ طے ہو گیا، جس پر جب جیسے ہی وہ ادھر سے گئے تو انہوں نے دوبارہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور یہاں پر ٹیلی فونک رابطہ کر کے کنٹینرز اٹھانے کے حوالے سے کہا گیا اور کنٹینرز اٹھانے کے حوالے سے ہاں کر دی گئی، اور اس طرح عمران خان بھی مان گئے اور حکومت بھی مان گئی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ زمان پارک کے باہر کوئی ایک کنٹینر موجود نہیں ہے، کوئی ایک شامیانہ موجود نہیں ہے، تمام ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، LWNC، PHA، واسا، ضلع انتظامیہ، کارپوریشن، LDA، تمام تر ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں پہ علاقے کی بھرپور سرویلنس کر رہی ہیں، واشنگ کی جا رہی ہے، دھلائی کی جا رہی ہے، زمان پارک کے نام سے کافی زیادہ شہریوں کو یہاں پہ۔ اچھا عمران ایک بار یہ بھی کلیئر کر دیجئے گا کہ جو زمان پارک کی جو اب روڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اپنے ناظرین کو بتائے گا کہ وہ بآسانی اب استعمال کر سکتے ہیں اس کو؟ جی بالکل، چونکہ ابھی جو ہے رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں،
कंटेनर हटा दिए गए हैं, शामियाने खत्म कर दिए गए हैं। अब PHA और LWMC की टीम जो है वो सफाई धुलाई और पौधों को दोबारा से स्ट्रीमलाइन में लेकर आ रही है, मगर जो माल रोड से धर्मपुरा आने वाली सड़क है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाड़ियों के लिए खुली है, अभी शहरियों के लिए पूरा ओपन नहीं किया गया। मगर इसके साथ साथ जो ठंडी सड़क है जिसको हम डेविस रोड की तरफ से आकर इस्तेमाल करते हैं, उस रोड को भी एचिसन कॉलेज तक खोला गया है। एचिसन कॉलेज से जैसी जमान पर शुरू होता है वहां से इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जैसे ही ये रोड सारी क्लियर होगी उसी वक्त ही जो है रोड को खोल दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि आज शाम तक इस रोड को है बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि समान पार्क में इमरान खान की रहायशगाह के बाहर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन क्रेन की मदद से कंटेनर्स, बैरियर्स और ग्रीन बेल्ट पर बनी PTI के कैंप हटा दिए गए हैं। रात 10 घंटे से जायद जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सुबह 5 बजे मुकम्मल हुआ। इमरान खान की रहायशगाह अब मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर कैंपों की कसीर तादाद नज़र आती थी। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो मेरे अकब में सारा एरिया जिसको साफ़ करवा दिया गया है। रात तकरीबन 10 घंटे तवील ऑपरेशन जारी रहा, जिसके अंदर तमाम तजावुज़ात थे उनको हटा दिया गया है। यहाँ से जितने पोस्टर्स थे यहाँ से हटा दिए गए हैं, कंटेनर्स से हटा दिए गए हैं। हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए जो है हुकूमत ने तमाम इलाके को है क्लियर करवा दिया है। ज़मान पार्क को क्लियर करवा दिया गया है। जितने यहाँ पर कारकुनान उनको मौजूद या कारकुनान मौजूद थे उनको वापस भेज दिया गया है। जो इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी पर मामूर फोर्सेस मौजूद थी, उनके ज़ाती कारकुनान मौजूद थे, उनको वापस भेज दिया गया है। ज़मान पार्क का इलाका जो है बिल्कुल पूरी तरह से हमें तब्दील नज़र आता है, क्योंकि कुछ अरसा कबल यहाँ कल तक ही अगर हम देखें कारकुनान की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पर गाड़ियों की ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती थी, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम कारकुनान दे रहे थे। लेकिन अब अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दोबारा दिखाए तो पंजाब पुलिस के अंडर है सारा एरिया और पंजाब पुलिस ने जो है सिक्योरिटी टेकअप की हुई है। यहाँ पर पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है, यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देखते हुए दिखाई देते हैं। और ज़मान पार्क को क्लियर करवा लिया गया है, इलाका क्लियर करवा दिया गया है ज़मान पार्क का। और रात तकरीबन 10 घंटे तवील जो है ऑपरेशन जारी रहा नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ यहाँ पर। और सुबह 5 बजे के करीब जो है तमाम इलाके को जो है क्लियर करवाया गया, जिसके अंदर दोबारा से जो है पुलिस ने तमाम बाद में यहाँ पर चेक पोस्टर संभाली और पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाले। ज़मान पार्क के इलाका क्लियर करवा दिया गया। दोबारा बताता चलूँ आपको, यहाँ पर कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, हैवी मशीनरी यूज़ करते हुए कंटेनर्स हटाए गए, कैंप जो लगे थे वो हटाए गए। यहाँ पर कारकुनान को वापस भेज दिया गया यहाँ से। और पोस्टर्स भी यहाँ पर जगह जगह लगे हुए थे उनको हटा दिए गए। और उम्मीद है कुछ देर तक अभी ट्रैफिक के लिए तो ज़मान पार्क की जो मेन सड़क है नहीं खोली गई, उम्मीद है कुछ देर तक ट्रैफिक के लिए भी सड़क खोल दी जाएगी। दोबारा से ज़मान पार्क जो है अपनी असली हालत में हमें जो है इस तमाम तहरीक से पहले जिस तरह से था उस तरह दिखाई देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन। PTI के 123 कारकुनों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने 123 कारकुनों की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 123 कारकुनों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फरूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं। PTI के 123 कारकुनान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने 123 कारकुनान की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने 123 कारकुनान को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है, तो वहीं जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने फरूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को ख़वातीन की हिरासत से रोक दिया है, लेकिन मोहसिन नकवी कहते हैं कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस ख़वातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। फ़ौजी मकामात पर हमला ख़ास तौर पर जना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद ख़वातीन से लेडीज़ पुलिस स्टेशन में आकर खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत बरतने का फ़ैसला किया गया है। पंजाब भर में 9 मई को 138 मुकदमात में 500 से ज़ायद ख़वातीन मतलूब हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस ख़वातीन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। इन मुकदमात में मुलव्विस ख़वातीन की गिरफ्तारी लेडीज़ पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए और कोशिश की जाए कि ख़वातीन पुलिस स्टेशन में रखा जाए। ATC के दफ़ात के तहत दर्ज FIRs में शामिल ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी है। नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के कोई सबूत मिले हैं, ना ही इन्होंने कोई माली फ़वाइद हासिल किए हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक।
احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل، نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ نیب نے شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آشیانہ ہاؤسنگ کے ٹھیکے دینے کے پروسیس میں بدعنوانی کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ آشیانہ پروجیکٹ شروع کرتے وقت خزانے کو نقصان پہنچا، نہ ہی شہباز شریف نے کوئی فوائد حاصل کیے۔ شہباز شریف کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ آشیانہ سکینڈل میں شہباز شریف کے خلاف بدنیتی کا کوئی پہلو بھی ثابت نہیں ہوتا۔ نیب نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ریکارڈ اور شواہد کے مطابق کسی پبلک آفس ہولڈر نے کسی قسم کے کوئی فوائد حاصل نہیں کیے۔ کامران کیانی نے بھی خزانے کو نقصان پہنچایا، نہ ہی فواد حسن فواد نے ٹھیکہ دلوانے کے لیے کوئی رشوت لی۔ شہباز شریف نے آشیانہ کا ٹھیکہ لطیف اینڈ سنس کو دینے کا معاملہ قانون کے مطابق اینٹی کرپشن کو بھجوایا تھا۔ نیب نے احتساب عدالت سے قانون کے مطابق شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ موسم کی بات کریں تو موسم کے حوال کچھ یوں ہے کہ شہر لاہور میں سورج نے آگ برسانا شروع کر دی ہے۔ شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ لاہور ایک بار پھر فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے موسم کی تو شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ گرم ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج۔ اسی طریقے سے اگر میں بات کروں درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے یہی دیکھا جائے گا کہ درجہ حرارت جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اگر میں بات کروں ہوا میں نمی کے تناسب کی تو آج 50% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ ویکینڈ اس پہ بارش برسنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس ویکینڈ ہم یہی دیکھیں گے کہ موسم جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی گرم رہے گا۔ اگر میں بات کروں اس وقت کے درجہ حرارت کی تو وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا درجہ حرارت جو ہے اس میں ہمیں مزید اضافہ ہی دیکھنے میں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو لاہور شہر جو ہے وہ فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 146 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو ڈی ایچ اے فیز 5 کا 155 ریکارڈ کیا گیا، جوہر ٹاؤن کا 130 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں یہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو اس ویکینڈ ہے موسم وہ اسی طریقے سے گرم ہی رہے گا، لیکن آنے والے ویکینڈ میں بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا شہر میں 4 میگا پروجیکٹ شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ 4 میگا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے 11 ارب 96 کروڑ 40 لاکھ روپے کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے۔ جیل روڈ انڈر پاس الاٹمنٹ لنک کنیکشن فیروز پور روڈ سے پائن ایونیو منصوبے کو شروع کیا جائے گا۔ گلبرگ سے والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور اور بیدیا روڈ انڈر پاس کے منصوبے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہیں ایل ڈی اے کا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز کی پری کوالیفیکیشن کرنے کا بھی فیصلہ ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ شہر لاہور کے 3 میگا پروجیکٹس تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں، تاہم پنجاب حکومت نے شہر لاہور میں مزید 4 میگا پروجیکٹس شروع کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور ان 4 میگا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے 11 ارب 96 کروڑ 40 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ جیل روڈ انڈر پاس ری الائنمنٹ لنک کنیکشن فیروز پور روڈ سے پائن ایونیو منصوبے کو شروع کیا جائے گا، جبکہ گلبرگ سے والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور اور بیدیا روڈ انڈر پاس کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ ایل ڈی اے نے ان میگا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے کانٹریکٹرز کی پری کوالیفیکیشن کا فیصلہ کیا ہے اور پری کوالیفیکیشن میں ایل ڈی اے کی شرائط پر پورا اترنے والی کمپنیوں کو ہی ٹھیکہ دیا جائے گا۔ اسی تناظر میں ایل ڈی اے نے 5 جون تک کمپنیوں سے پری کوالیفیکیشن کی درخواستیں طلب کر لی ہیں، جس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے منظور شدہ کوڈ CE 1, 2, 9 اور 10 کی حامل کمپنیاں پری کوالیفائی ہو سکیں گی۔ جیل روڈ انڈر پاس ری الائنمنٹ منصوبے کا ٹھیکہ دینے کے لیے جو شرائط وضع کی گئی ہیں اس کے مطابق 800 ملین اور اس سے زائد کے ترقیاتی کام گزشتہ 10 سال میں کرنے والی کمپنی پری کوالیفیکیشن کے لیے اہل ہوگی، جبکہ جیل روڈ انڈر پاس ری الائنمنٹ کے لیے 2 ارب 40 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اچھا زین، یہ بھی بتائے گا کہ منصوبے بنانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، فنڈز بھی میسر ہوتے ہیں، لیکن کام پر نظر ثانی نہیں کی جاتی؟ بنیادی طور پر شہر لاہور میں اس وقت جو ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔
तो इसी तनाजुर में ये पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि शहर लाहौर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मजीद 4 मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। ये मेगा प्रोजेक्ट गुज़श्ता 3 सालों के माली साल के बजट के जो अनअप्रूव्ड हेड है उसमें शामिल थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा नहीं किया गया था। ताहम अब निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इन मंसूबों को फिलफौर शुरू किया जाए, जिसके तनाजुर में इन मंसूबों की मंजूरी भी दे दी गई है और इनके लिए जो फंड्स हैं वो भी एलोकेट कर दिए गए हैं। तो इस तरह 11 अरब 96 करोड़ 40 लाख रुपए के ये जो 4 मंसूबा जाते हैं इनको शुरू किया जाएगा और प्लान ये बनाया गया है कि रवा माली साल ही 30 जून से कबल ही इन मंसूबों के जो संगे बुनियाद हैं वो रख दिए जाएं और इन चारों मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए आइंदा 8 माह की डेडलाइन दी गई है। अच्छा ज़ैन, कलमा चौक का जो मंसूबा था वो तो बामुश्किल ही मुकम्मल हुआ है, तो ये मंसूबे जो हैं इनके लिए कितना वक्त दरकार होगा? कलमा चौक पर जो सीबीडी पंजाब की जानिब से अंडरपास और 2 बैनर की तमीर का काम किया गया है उसको मुकम्मल करने के लिए PC1 के मुताबिक 30 जून की डेडलाइन थी। ताहम निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि इसको 2 माह कबल मुकम्मल किया जाए और 5 मई को इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसी तरह शहर लाहौर के जो दीगर मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनमें फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा है और इसके साथ साथ समनाबाद के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का मंसूबा है। प्लान ये भी बनाया गया है कि इन दोनों मंसूबों को भी 30 मई तक मुकम्मल कर लिया जाए। फिरोजपुर रोड लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा अपनी गुज़ा करदा डेडलाइन से 1 साल 4 माह तखीर का शिकार है। इस मंसूबे में गुज़िश्ता बरस में मुकम्मल होना था, लेकिन तकनीकी मसाइल की वजह से और फंड्स ना होने की वजह से लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा में तखीर हुई। इसी तरह समनाबाद अंडरपास मंसूबा जिसको मुकम्मल करने के लिए अगस्त की डेडलाइन दी गई है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जब समनाबाद अंडरपास का दौरा किया गया तो उस मौका पर उनकी जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि इस मंसूबे को गुज़ा करदा डेडलाइन से कबल मुकम्मल किया जाए। तो इस तरह समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए भी 30 मई की डेडलाइन दी गई है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि इस मंसूबे की गुज़ा करदा डेडलाइन पर ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि अभी तक इस मंसूबे का 72% तामीराती काम मुकम्मल हो सका है और ठीक है, 4 मंसूबे बनाने का ये फैसला किया गया है और उनका तखमीना भी लगा लिया गया है। ज़ैनुल आबदीन इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिजली की तलब बढ़ते ही लोड शेडिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। लेस्को की बिजली की तलब 4200 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली की शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल बढ़ने पर लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से ऊपर पहुंच गया है। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। बताइए फ़ाहद। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब में भी जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तलब 4200 मेगावाट से तजावत कर गई है। गुज़िश्ता रोज लेस्को की बिजली की तलब 4100 मेगावाट की और आज 100 मेगावाट का इजाफा हुआ है। इस तरह NPCC की जानिब से लेस्को को 3800 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को इस वक्त 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है और शॉर्टफॉल ज्यादा होने के बायस शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी ज़ायद है। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को इंतजामिया की जानिब से हाई लॉसेस फीडर्स पर भी 3 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। लाहौर तलीमी बोर्ड की सिक्योरिटी आउटसोर्स करने का फैसला सामने आया है। अगले माह से निजी कंपनी के एहलकार लाहौर तलीमी बोर्ड की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लाहौर तलीमी बोर्ड की बिल्डिंग और मरकज़ी इम्तिहानी सेंटर की सिक्योरिटी निजी कंपनी के हवाले होगी। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जो लाहौर बोर्ड की मौजूदा सिक्योरिटी है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उससे गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और ये अब हुक्म दिया था फौरी तौर पर जो है सिक्योरिटी आउटसोर्स की जाए। तो लाहौर बोर्ड की इंतजामिया ने मामला जो है इस हवाले से इख्तियार दिया और अब निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया है कि वो लाहौर बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी संभालेगा और उसके साथ साथ जो 49 लारेंस रोड पे वाक़या इम्तिहानी मरकज है उसकी सिक्योरिटी भी निजी कंपनी के हवाले होगी। इस वक्त जो है 60 के करीब सिक्योरिटी गार्ड जो जिनमें मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है इससे ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट खुश था और इसी को देखते हुए ये हदायत की गई थी कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी जो है आउटसोर्स की जाए। तो इस हवाले से टेंडर दिया गया और मुख्तलिफ कंपनियों
से जो है वो खदमात मांगी गई थी, और अब ज़राए का कहना है कि फैसला हो चुका है और एक निजी कंपनी को जो है वो टेंडर दे दिया गया है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो गया है। 1,90,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तहान में शरीक होंगे। पार्ट 2 के इम्तहानात का सिलसिला 3 जून तक जारी रहेगा। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम जो है इंटरमीडिएट के पार्ट 2 इम्तहानात का आगाज़ हो गया और आज पहला रोज़ है और पहले रोज़ 6 मज़ामीन के इम्तहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। लाहौर डिवीज़न की बात की जाए तो 1,90,000 के करीब जो तलबा और तालिबात इन इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। तो अभी पहली शिफ्ट का इम्तहान जो ख़त्म हुआ है, कुछ उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं और वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज हमारा मजमून था, साइकोलॉजी का पेपर था, तो अच्छा गया। तो सारे इंतजाम सही थे, पानी भी सही था और सख्ती ज़्यादा थी और बस। बिल्कुल, साइकोलॉजी का इनका इम्तहान था और कुछ वालिदैन भी मौजूद हैं जो सेंटर से बाहर हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा आप इंतजामात के हवाले से क्या कहें? आज मेरे बेटे का FSC के पेपर अब स्टार्ट होने हैं। मंडे को उसका पहले इंग्लिश का पेपर है। अभी मैं अंदर से यही मैं देख के आई हूँ सारे इंतज़ामात। वो कह रहे हैं सब कुछ, हर चीज़ बिल्कुल अवेलेबल है। किसी किस्म से कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, पानी का कोई अरेंज हो, हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि क्योंकि मैं जोहर टाउन से आ रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं बच्चे के साथ यहाँ पे रहना चाहती हूँ 3 घंटे के लिए। तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई अरेंज नहीं है तो बाहर ही अरेंज होगा। अब इतनी सख्त धूप में मैं 3 घंटे गुजारने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि जितनी देर तक ये बोर्ड के पेपर है कोई अच्छा सा अरेंज हो, क्योंकि पेरेंट्स जिन्होंने आना है साथ, जिन माओ ने साथ आना है, उनके लिए कोई अरेंज किया जाए अच्छा। बिल्कुल, ये सिर्फ इन इम्तहानात में नहीं, हर इम्तहानात में वालिदैन की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है कि बाहर सेंटर के जो लॉरेंस रोड पर बाहर सेंटर है और इसके सामने पार्किंग मौजूद है, यहाँ पर कुछ शामियाने का इंतज़ाम किया जाए, कुछ छाँव का बंदोबस्त किया जाए, पानी जो है वो होना चाहिए, बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। लेकिन लाहौर बोर्ड की जानिब से हर साल जो है इस तरह के इंतजाम नहीं किए जाते, तो वालिदैन को मुश्किलात का सामना है। और जो भी बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं, जो 3 घंटे बाहर सेंटर के बाहर खड़े रहते हैं, उन्होंने हमेशा ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर छाँव, पानी का और बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। खबर ये है कि तर्जुमान पंजाब पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस कहते हैं हामिद मीर ने PTI वालों की एक झूठी वीडियो रीट्वीट की। हामिद मीर ने लिखा, वीडियो में मौजूद 8 लोग वो हैं जो पुलिस ने ज़मान पाक से गिरफ्तार किए। झूठा दावा रीट्वीट किया कि दरअसल ये 8 लोग जेल से निकाल कर लाए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि तर्जुमान पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के झूठे प्रोपेगेंडा की तरदीद कर दी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का इस मुताबिक बयान सामने आया है। कहते हैं कि हामिद मीर ने PTI वालों की एक झूठी वीडियो रीट्वीट की है और हामिद मीर ने लिखा, वीडियो में मौजूद 8 लोग वो हैं जो पुलिस ने ज़मान पाक से गिरफ्तार किए। झूठा दावा रीट्वीट किया और दरअसल ये 8 लोग जेल से निकाल कर लाए गए हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। आर्मी मेडिकल कॉर की टीम ने DIG अली नासिर रिजवी की आंख का मुआयना किया है। टीम ने DIG अली नासिर रिजवी के इलाज के लिए ज़रूरी मामलात की पेशकश भी की है। टीम ने दीगर पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं के इज़हार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आर्मी मेडिकल कॉर की टीम ने DIG अली नासिर रिजवी की आंख का मुआयना किया है और उनकी जानिब से मुकम्मल मामलत की पेशकश भी की गई है। टीम ने दीगर पुलिस एहलकारों की भी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। पाक फौज के डॉक्टर्स की टीम का सर्विसेज अस्पताल का ये दौरा है जो आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और आपको बताएं कि DIG अली नासिर रिजवी की सेहत से मुतालिक आर्मी टीम ने डॉक्टर से भी पूछगिछ की है और टीम ने दीगर पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस मुलाजमीन में कैश इनामात और तारीफ़ी असनाद तकसीम किए गए हैं। 85 अफसरान और एहलकारों में 13,57,000 रुपये के नकद इनामात और तारीफ़ी असनाद तकसीम की गई हैं। इनामात हासिल करने वालों में 28 सब इंस्पेक्टर्स, 15 ASI, 6 हेड कांस्टेबल्स और 36 कांस्टेबल शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्दा तकरीब में 85 अफसरान और एहलकारों में 13,57,000 रुपये कैश इनामात और
तारीफी इनामात तकसीम किए गए हैं। इनाम हासिल करने वालों में मुल्तान रीजन में शामिल इजला के 85 अफसरान और एहलकार शामिल हैं। इनामात हासिल करने वालों में 28 सब इंस्पेक्टर, 15 ASI, 6 हेड कांस्टेबल और 36 कांस्टेबल शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर्स को 25, ASI को 15, हेड कांस्टेबल को 12, जबकि कांस्टेबल को 10,000 रुपये फी कर दिए गया है। जी, पंजाब की इनामात हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी गई है। पहले से ज्यादा मेहनत से काम की हिदायत भी की गई है और उनका ये कहना था कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम का कलाकमा करने के लिए ज्यादा दिलजमी और फर्ज शनासी के साथ काम करें और महकमा से मिलने वाली इस इज्जत ठीक को है, मुजाहिद लतीफ़ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर साजिद की 3 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने LDA को अल रहीम गार्डन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर साजिद मनहीस की 3 गैर कानूनी स्कीम्स हैं और डायरेक्टर एंटी करप्शन ने LDA को अल रहीम गार्डन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ सामने आया है। एंटी करप्शन पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर साजिद मनहीस की 3 गैर कानूनी स्कीम सामने आई हैं। मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं बताएंगे शबीर हैदर। बताइए शबीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का इंकशाफ सामने आया है, जिस पर एंटी करप्शन पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर साजिद मनहीस की 3 गैर कानूनी स्कीमें हैं, जिनमें साजिद मनहीस की अल रहीम गार्डन हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी और इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि अल रहीम गार्डन जो है उनमें बगैर NOC के तमीरात इस वक्त अरूज पर हैं और इसमें अल रहीम गार्डन के तमाम खसरा नबरान जो हैं वो रूडा प्रोजेक्ट में आते हैं और इसके साथ जो तमाम खसरा नबरान रूडा में आने के बावजूद जो है इस सोसाइटी में जो तमीरात का सिलसिला जारी है, जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान अहमद मलिक ने जो है LDA को अल रहीम गार्डन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है और इसमें एंटी करप्शन ने भी जो है LDA से इस हाउसिंग सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया और इसके साथ एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से इसके खिलाफ बाकायदा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि तमाम जो एक रूडा प्रोजेक्ट के अंदर खसरा नबरान आ गए उस पर जो है तमीरात बिल्कुल गैर कानूनी है, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से उनसे जवाब भी तलब किया गया है कि ये किस कानून के तहत वहाँ पर तमीरात करवाई जा रही है और उसके साथ साथ LDA को भी हिदायत जारी की गई है कि LDA इसके ऊपर एक्शन ले और इन तमीरात को बिलफौर रुकवाया जाए और इसके साथ एंटी करप्शन काम का कहना है कि LDA की जानिब से कार्रवाई के बाद मजीद जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। LDA महकमा जंगलात, ज़िला इंतज़ामिया, माहौलियात, ज़राअत, PHA अफसरान ने भी इसमें शिरकत की है, तो वहीं शजरकारी भरपूर अंदाज में होगी। इजलास में ये भी फैसला किया गया है और साथ ही साथ कमिश्नर की शजरकारी हिताब के हसूल के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने की हिदायत है। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल शजरकारी भरपूर मुहिम से जारी की जाएगी। लाहौर में हर पौधा जियो टैग होगा, निगरानी होगी। इस वाले से तमाम एरियाज में आलूदगी इंडिकेटर्स के मुताबिक शजरकारी होगी। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने शजरकारी अहदाफ हसूल के लिए महकमों को एक सफ़े पर लाने की हिदायत कर दी है। शजरकारी के लिए लाहौर डिवीजन की एक खसूसी एप्लीकेशन तैयार करके आज लॉन्च की जाएगी, जबकि इस वाले से PHA, जंगलात, ज़राअत, माहौलियात, LDA तमाम इजला खसूसी पब्लिक मोबाइल एप्लीकेशन के पार्टनर्स होंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में पौधे हर किस्म की लोकेशन, नशोनुमा और गिनती और निगरानी फीचर्स होंगे। शहरियों की शमूलियत के लिए सेल्फी और इसके साथ साथ प्लांट्स, माली प्लांट्स के फीचर्स भी एप्लीकेशन का हिस्सा होंगे। शजरकारी 7 रोज के बाद इजलास होगा और इस वाले से एप्लीकेशन के जरिए तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने का। PTI के 72 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना समेत दीगर की दरख्वास्तों पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया, स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। स्पीकर हर मेंबर को
अलग अलग सुनकर उनके इस्तीफे मंजूर करने या ना करने का फैसला करें। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कल ही अदालत की जानिब से ये हुक्म सामने आया था कि ये मामला स्पीकर की जानिब से देखा जाएगा और स्पीकर हर मेंबर को अलग अलग सुनकर उनके इस्तीफे मंजूर करने या ना करने का फैसला भी करेगा। पीटीआई के 72 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।